everyone. Today we are going to start chapter 4 heat for class 7th. Now this chapter is about heat. So in our daily life we come across various substances and various objects which we feel like it is cold or it is hot. Now for example, हम खाना खाते हैं, जब खाना बना हुआ होता है तुरंत तो वो गर्म होता है. अगर हम आइसक्रीम खाते हैं तो वो हमें ठंडी लगती है. सो दीज आर हॉट एंड कोल्ड थिंग्स. नाउ दिस वी कॉल इज एज टेम्परेचर. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज द टेम्परेचर. मीन्स कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, दैट वी कैन मेजर थ्रू the instrument. We call it as thermometer. This is the device which is used to measure the temperature. Like कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि गर्म हैं, लेकिन फिर भी उसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं. लाइक उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है, कौन सी चीज़ कम गर्म है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रोटी सेक रहे हैं तो रोटी सेकने के बाद अगर हम चेक करें तो रोटी कम गर्म होगी और जो तवा है वो उससे ज़्यादा गर्म होगा. सो दैट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस. वो कितना ज़्यादा गर्म है और रोटी कितनी गर्म है, दैट डिग्री वी कैन मेजर यूजिंग द thermometer. Similarly, in case of coldness, if we check the coolness of water, पानी ठंडा है उसकी डिग्री हम मेजर करें और उसके कंपेयर में अगर हम आइस को देखें तो आइस ज़्यादा ठंडी है. बट कितनी ज़्यादा ठंडी है और कितना पानी कम ठंडा है उससे, इसकी जो डिग्री है दैट वी यूज टू मेजर थ्रू यूजिंग thermometer. So temperature is basically the degree of hotness or coldness of an object, and the device which we use to measure that degree is known as thermometer. Now there are basically in this chapter we are going to learn about 3 different types of thermometers. The first is about clinical thermometer, second is laboratory thermometer, and third is maximum and minimum thermometer. Now let us first understand about the clinical thermometer. Now clinical thermometer are those thermometers which we use to measure the temperature of our body. जो डॉक्टर्स आपने देखा होगा, डॉक्टर्स जिस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं आपका फीवर नापने के लिए, दैट थर्मामीटर वी कॉल इट एज क्लिनिकल थर्मामीटर. नाउ लेट अस सी द फीचर्स ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर. First, it measures our body temperature. Then it is the structure of this thermometer is it is a long narrow tube which is made up of uniform glass, right? And it has a bulb at one end. Now this bulb which is present in this thermometer is filled with mercury. And the scale which is mentioned on this clinical thermometer is of Celsius scale. Right, it is denoted by degree C. Now this thermometer has a range of 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Earlier in this clinical thermometer we were using the scale of Fahrenheit, but now India has adopted the Celsius scale, so we are using nowadays we are using this Celsius scale on our clinical thermometers, this which ranges from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Now I have a clinical thermometer with me, and I'll show you the different parts of this clinical thermometer. Okay, now as you can see, this is a clinical thermometer in my hand, and in this structure you can see this is a long tube like structure. This particular part, this is the bulb of this thermometer, this shining portion from here to here, this is the bulb and it contains mercury. इस bulb के अंदर mercury filled है. Now you can see this glass tube, it has certain markings on it. As you can see here, these are the markings. Now I am going to show you the range of this. Now you can see it is starting from 35 degrees Celsius. You can see here degree C is written. So this is starting from 35 degrees Celsius and it reaches up to 42 degrees Celsius. So this is the range of our thermometer. Now you can also see some small divisions mentioned in this thermometer.
right? So just like in our scale, it is also having some markings. So these small lines, it measures 0.2 degrees Celsius temperature. Okay, now I am going to show you the mercury line. Now here you can see in this is a line. Here you can see there is a line, and this constriction at this line, ये जो straight line पतली सी दिख रही है आपको, इसके बीच में ये थोड़ा सा constriction दिख रहा है, right? This constriction over here, this particular point, this constriction is the kink. Okay, so this is the kink, and mercury, when we measure the temperature, mercury from this bulb rises up and it goes to the markings. So from here you can see how much temperature a person is having. So I have shown you the clinical thermometer. I hope you have understood it. So I have shown you the bulb, I have shown you the markings on the clinical thermometer, I have shown you the thin line on the thermometer which has a kink. Now why this kink is there in this thermometer? आपने देखा होगा जब भी हम ये थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, तो थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, इस थर्मोमीटर को जर्क देते हैं, ऐसे झटके देते हैं जिसे हम बोलते हैं जर्क देना. वाई? अगर इसमें मर्करी लेवल ऊपर होगा तो वो नीचे आ जाए. अब इस किंक का रोल ये है कि किंक होने की वजह से मरकरी अपने आप नीचे नहीं आती है. हम जैसे थर्मोमीटर से जो टेम्परेचर अपनी बॉडी का लेते हैं, हम उसको टंग के नीचे रखते हैं और उसके बाद वहाँ से हटा के इसको इस तरीके से देखते हैं, राइट? अगर इसमें किंक नहीं होगा तो हमारे जीभ के नीचे से निकालने के साथ ही मरकरी अपने आप नीचे आ जाएगी और हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे कि टेम्परेचर कितना था हमारी बॉडी का. सो मरकरी को अपने आप नीचे गिरने से रोकने के लिए ये किंक इस थर्मोमीटर में होती है, राइट? नाउ लेट अस सी अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर उसका भी होता है, बट इससे वो बड़ा होता है, राइट? इससे काफ़ी बड़ा होता है और उसकी रेंज एंड पर्पस अलग होता है. Now here laboratory thermometer is used for measuring the temperature of objects, temperature of solutions, right? जैसे हम लैब में बहुत सारे केमिकल्स के साथ वर्क करते हैं, उसमें हमें टेम्परेचर को भी मेंटेन करना होता है. सो फॉर चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ दोज सॉल्यूशंस वी यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर केवल बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए ही यूज़ होता है. Now laboratory thermometer, it measures the temperature of objects and solutions. It has a range of -10 degrees centigrade to 110 degree Celsius. Now आप देख सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज था वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस था, बट यहाँ पर जो रेंज है वो थोड़ी ज़्यादा है, -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक जा रही है, राइट? एंड इट डज नॉट हैव किंक. लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है. जो लाइन में हमने कंस्ट्रक्शन देखा था वो किंक इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता है. इसीलिए जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नापने के लिए, तो हम उसको सपोज़ अगर मैं इसका टेम्परेचर नापना चाहूँ तो मैं उसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऐसे डिप करके रखूँगी और ऐसे स्ट्रेट रखूँगी. इसको जब ये डिप है तभी मैं इसकी रीडिंग यहाँ से देखूंगी, चेक करूंगी. अगर मैं इसको सोल्यूशन से निकाल दूं और उसके बाद रीडिंग देखूं तो रीडिंग गलत आएगी, क्योंकि जैसे ही मैं इसको सोल्यूशन से निकालूंगी मर्करी अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाएगी. सो दैट विल गिव अस इनकरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर. सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमेशा सोल्यूशन के अंदर डिप रहता है, उसी टाइम पे हम उसकी रीडिंग लेते हैं बिकॉज इट डज नॉट हैव किंक, राइट? नाउ let us see some precautions for the clinical thermometer.
क्लिनिकल थर्मामीटर जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद आपको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसको धोना है, ठीक है, उसको क्लीन करना है, देन यू कैन यूज़ इट फॉर एनी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसको साफ़ करिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, देन उसको यूज़ करिए, देन अगेन उसको क्लीन करिए। सेकेंड इज, जब भी आप क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको जर्क दे के आप नोटिस कर लीजिए कि जो मर्करी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। अगर ऊपर होगा तो इट विल गिव अस इनकरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, राइट। तो हमेशा उसको जर्क दे के मर्करी जो है वो आपकी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए, इसको इंश्योर कर लीजिए। देन नेक्स्ट इज अबाउट द मेजरमेंट। ये आपको जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप ये जो बल्ब है थर्मामीटर में, इसको पकड़ के मेजरमेंट नहीं लेना है, क्योंकि जब आप बल्ब को पकड़ेंगे तो मर्करी आपके फिंगर्स से जो टेम्परेचर है उसको लेना शुरू कर देगा। सो ऑलवेज होल्ड इट ऑन द टॉप ऑफ द thermometer, right? So you hold it like this, and in front of the light you can easily read the marking. So these were the precautions and readings. In this, the measurements are clearly given, but for the smaller divisions you have to notice that the smaller division, the smaller line in this thermometer measures 0.2 degree Celsius. And then we have the normal body temperature. हम लोगों का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 37, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। 37 डिग्री सेल्सियस इज नॉर्मल। पॉइंट में कुछ भी आगे पीछे होता है, दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, राइट। सो दिस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एंड इन फ़ारेनहाइट इट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, so this was about the normal body temperature. Then we have last maximum and minimum thermometer. This thermometer is used to measure the temperature of day and night. जो हम वेदर का टेम्परेचर लेते हैं कि आज दिन भर में कितनी गर्मी रही या कितना ठंडा रहा मौसम, वो हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर यूज़ करके पता करते हैं। ओके, now let us understand the next topic, that is the transfer of heat. Now transfer of heat समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि जब हम किचन में जाते हैं खाना बनाने, गैस ऑन करते हैं और हम कोई भी बर्तन उस पर रखते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, धीरे धीरे वो बर्तन जो हमने गैस पे रखा है वो गर्म हो जाता है। Now this is the transfer of heat. गैस बर्नर जब हमने ऑन किया तो वहाँ से हीट जो वेसल रखा था उसमें गई और धीरे धीरे वो वेसल में ट्रांसफ़र होके पूरा वेसल जो है वो गर्म हो गया, राइट। सो दिस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नाउ व्हेनेवर देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन अ सॉलिड सब्सटेंस, लाइक ये जो बर्तन है हमारे ये सॉलिड है, राइट। सो व्हेनेवर ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ टेकिंग प्लेस इन अ सॉलिड सब्सटेंस, इन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, वी कॉल इट एज कंडक्शन। ओके, नाउ हियर always the heat transfer takes place from hotter region to the colder region. जब हमने बर्तन पहले रखा था वो ठंडा था और जो गैस बर्नर जो हमने ऑन किया था, जो वहाँ से हीट आ रही थी वो गर्म थी, राइट। और जब वेसल जब गर्म होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले उसका नीचे का पोर्शन है वो गर्म होगा और धीरे धीरे वो हीट पूरे वेसल में ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होने लगेगी, यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन था वो उस समय हॉटर था। सो फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर रीजन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। सो दिस इज़ द कंडक्शन। ना आपने देखा होगा अगर हम वेसल में पानी गर्म करते हैं तो पानी भी धीरे धीरे पूरा गर्म होता है, एक साथ पूरा गर्म नहीं हो जाता है। पहले नीचे वाला पानी गर्म होना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो पूरा पानी गर्म होता है, राइट। सिमिलरली अगर हम कोई कैंडल जलाएं तो कैंडल जलाने के बाद उसके आसपास अगर आप कैंडल जला के उसके ऊपर हाथ करेंगे तो आपको यहाँ की जो उसके फ्लेम है उसके ऊपर की जो हवा है वहाँ पर गर्माहट महसूस होगी, यानी कि वो जो एयर है वो गर्म हो गई है, राइट। पहले तो पूरी एयर ठंडी थी, फिर धीरे धीरे वो गर्म हुई। अब ये जो गर्म एयर है वो धीरे धीरे
ट्रांसफ़र होगी और ठंडी हवा जो है वो यहाँ से यहाँ आएगी और फिर वो गर्म होना स्टार्ट करेगी। इन तीनों प्रोसेसेस में हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ जा रही है। अगर ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट इट इज़ टेकिंग प्लेस इन सॉलिड्स देन वी विल कॉल इट एज कंडक्शन। सॉलिड में अगर हो रहा है तो कंडक्शन कहेंगे। अगर लिक्विड या जैसे कि वाटर या फिर एयर या फिर गैस भी कह सकते हैं, अगर उसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है देन वी विल कॉल इट एज कन्वेक्शन। ओके, पानी गर्म हो रहा है और धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो गया तो पानी के अंदर ही हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर, राइट? सो दैट वी विल कॉल एज प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। सिमिलरली एयर में एक जगह की एयर गर्म हो गई है तो वो ऊपर जाएगी, फिर दूसरी एयर उस जगह पर आएगी, मीन्स मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं हीट को, तो वहाँ पर भी हम इस प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलेंगे। नाउ द थर्ड प्रोसेस हेयर इज ऑफ radiation. Now radiation is that process in which heat transfer takes place but it does not require any medium. कोई मीडियम की इसे ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमने यहाँ देखा सॉलिड मीडियम की ज़रूरत होती है, राइट? यहाँ पर हमें वाटर मीडियम चाहिए या एयर मीडियम चाहिए, राइट? लेकिन रेडिएशन प्रोसेस में हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट जो सन हमें हीट देता है वो हमें किसी मीडियम के थ्रू नहीं मिल रहा है, वो सन से हमारे तक डायरेक्ट पहुंच रही है, राइट? सो दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू अस इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ radiation. So these are the three processes which transfers the heat. Now coming over to the next part about conductors and insulators. So those materials which allow the heat to transfer or to pass through them, they are called as conductors, right? जो materials अपने थ्रू heat energy को पास होने देते हैं उन्हें हम conductors कहते हैं। जैसे metals हैं, राइट? हमारे जो भी बर्तन होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, लाइक स्टील के हैं या आयरन के हैं, राइट? तो ये दीज आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज ये हीट को पास होने दे रहे हैं, राइट? सो दीज आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। देन इंसुलेटर्स को हम पुअर कंडक्टर्स भी कह सकते हैं बिकॉज दीज आर द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम ईजिली, आसानी से पास होने नहीं देते हैं। लाइक प्लास्टिक हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है। अगर आप एक तरफ से प्लास्टिक को हीट करेंगे तो वो हीट अपने आप दूसरे कॉर्नर तक नहीं पहुंचेगी, राइट? सिमिलरली इफ़ यू टेक rubber is also a bad conductor of heat. Wood is another example which is a poor conductor, or you can say insulator. It does not allow the heat to pass through it. So this is about conductors and insulators. Now regarding this radiation, let us see the two concepts, sea breeze and land breeze. Here in these two processes we are going to understand this radiation, right? Now sea breeze, it is the time it takes place in daytime. Now in daytime what happens, first thing you have to keep in mind that land it heats up faster and it cools faster, right? लैंड जो है वो गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है, राइट? तो दिन में क्या होता है, सन रेज की वजह से यानी कि रेडिएशन की वजह से लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और इसलिए लैंड के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। अब हवा जब भी गर्म होती है तो वो और ऊपर की तरफ जाती है, मूव करती है। सो जब लैंड गर्म हो रहा है, सपोज दिस इज द लैंड सरफेस, ये पूरा लैंड है, सन रेज की वजह से ये गर्म हो गया है तो इसके ऊपर की जो यहाँ पर हवा है वो गर्म हो गई है। अब ये हवा गर्म होने की वजह से ऊपर चली जाएगी तो यहाँ का एरिया खाली हो जाएगा। इसको भरने के लिए जो साथ में ओशियन या सी है वहाँ से हवा रश करेगी और इस जगह को कवर करेगी। यहाँ से सी की तरफ से हवा लैंड की तरफ मूव करेगी क्योंकि लैंड के ऊपर जो गर्म हवा थी वो और ऊपर जा चुकी है और यहाँ का स्पेस जो था वो खाली था जिसको भरने के लिए सी की तरफ से हवा मूव की है। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज सी ब्रीज, क्योंकि सी की तरफ से हवा लैंड की तरफ जा रही है इसलिए हम इसे सी ब्रीज कहते हैं। और दिन में होता है ये प्रोसेस क्योंकि दिन में जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, वहाँ की हवा
ऊपर चली जाती है, राइट। एंड देन नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज। अब लैंड ब्रीज है तो लैंड हमारा रात के टाइम ठंडा भी जल्दी होता है, राइट। तो लैंड ठंडा हो गया है और जो हमारा सी में जो पानी था वो गर्म हो चुका था दिन में, अब उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, यानी कि जो सी है उसके ऊपर की जो हवा है वो गर्म है तो वो ऊपर चली जाएगी और स्पेस जो है वो सी के ऊपर खाली होगा। और लैंड क्योंकि ठंडा है तो इसके ऊपर की एयर भी ठंडी है, वो रश करेगी सी की तरफ, राइट। सी के ऊपर आई, अब यहाँ पर मूवमेंट लैंड टू सी हुआ, लैंड की तरफ से हवा सी की तरफ आ रही है, इसलिए हम इसको लैंड ब्रीज कहेंगे जो कि रात में हो रही है, राइट। सो सी ब्रीज, इट टेक्स प्लेस, द एयर मूव्स फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड एंड इट टेक्स प्लेस इन डे टाइम बिकॉज लैंड हीट्स अप faster. And land breeze from land towards the sea, it takes place during night, and why? It is because the land cools faster. Now next topic is the kind of clothes in summer and winter. What types of clothes do we wear in winter and summers? Basically in summers, because the temperature is very high, we feel very hot, so that's why it is preferred to wear light color clothes. Light color clothes, they used to reflect light, right. लाइट कलर क्लोथ्स जो होते हैं वो जो सनलाइट आ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए हमें लाइट कलर क्लोथ्स में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, सो हम लाइट कलर क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। सेकेंड थिंग इज वी यूज टू प्रेफर कॉटन क्लोथ्स, राइट। कॉटन क्लोथ्स हम प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो ईजिली जो हमारा जो गर्मी की वजह से स्वेटिंग होती है उसको स्वेट को एब्जॉर्ब करता रहता है और हमारी बॉडी को कूल फील कराता है, राइट। सो दैट इज व्हाई इन समर्स वी यूज टू प्रेफर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स, राइट। इन विंटर व्हाट हैपन्स, सर्दी ज़्यादा होती है, एयर जो सराउंडिंग होती है वो ठंडी होती है, सो वी नीड मोर वार्मथ। तो सनलाइट जो आ रही होती है वो बहुत ही हल्की महसूस होती है हमको, सो दैट इज़ वाई वी यूज टू वेयर वुलन क्लोथ्स एंड दैट टू ऑफ डार्क कलर, राइट। डार्क कलर इसलिए क्योंकि डार्क कलर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो जितनी भी सन रेज आ रही होती हैं हम डार्क कलर क्लोथ्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड वुलन क्लोथ्स उस हीट को अंदर रहने देते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं। सो दैट इज़ वाई इन विंटर्स वी यूज टू प्रेफर डार्क कलर्ड वुलन क्लोथ्स, right? So this is all about this chapter, heat. I hope you have understood it well. Thank you.